Now I would like to introduce our esteemed speaker for the session. So we generally come across a lot of profiles, but few profiles just get stuck and you just want to read and read it. And here is the profile which I would like to read and tell about our CA Achal Kapoor ma'am. So let me share that screen with you so that you can also have a look at how the profile is all about. And so many of accomplishments is there. So let me just read few very astonishing things about ma'am. So CA Achal Kapoor has made exemplary contribution to the profession and industry as a national speaker on GST, chartered accountant and law graduate in taxation practice for more than a decade, that is 14 years. With privilege of educating over 1,000 plus deliberations across India to professionals, industry, and trade at large. She has a prerogative of addressing an August gathering of 2,200 plus participants at one point. So she is a renowned faculty for NASIN and master trainer of Punjab's SGST and CGST and approved faculty of Institute of Chartered Accountants of India. She has also an additional qualification of Forensics Audit and Fraud Detection course by ICI, and she is also a co-opted member of our National Indirect Tax Committee for 25 and 26. So one thing which I really like about ma'am, that was she has been a rank holder of CA at various levels. And she has also been a regular writer at various online discussion portals such as Taxman, Tax Management India, Tax Guru, and our ACA journals as well. She has been a co-author of various ICA publications. So the more I tell you about ma'am, the more you want to know more about ma'am, and such an accomplishment at just 14 years of a thing. I think, ma'am, I think it's all an honor to host you as a speaker for our ACA platform on this thing. And ma'am, the forum is yours, and I would love to get the session ahead with this. I would humbly request you to unmute ma'am and take the session forward. Rohit, memento also is Yes. required to be given, Rohit. So, ma'am, we on behalf of our ACA, we would like to present you an e-memento for accepting our invitation on this, ma'am. So that's an e-memento from ACE team for you on this occasion. Thank you so much, Rohitji, and the entire team. Thank you. I heartily accept the same. Thank you. Thank you so much, ma'am. And the session is your, ma'am. So please, we would love to hear you out. Thank you. Well, thank you, Rohitji, for adding so many adjectives to my profile. I am really obliged. And আমাকে এই webinar রে বক্ত রাখনোর জন্য ACA কে ধন্যবাদ জানাই. I hope I have tried to have a Yes. accent in Bengali, but I'm really thankful to ACA Kolkata, CA Neeraj Harodia ji, the president, Tarun Kumar Gupta ji in absentia, who with whom I had the conversation personally, CA Anup Kumar sir, for making me come here on this platform of ACAI. So thank you so much, and I hope I will be able to make the best utilization of the time, and the participants and me, from their queries and from my experiences, we will be enriching each other. So now, without taking much time, as we are really short of time for discussing 990, but I really want to tell you one thing, ACA, that I'm so thankful. There were so many requests on my phone for the webinar on GSTR 9, which I was not able to conduct because of the ongoing seminars on the same issue. So this way I will be able to share this video on various platforms. Thank you so much for the same, sir. Now, to the participants, the chat box is all yours. And I request you to put as many as topic related messages therein, and which I will be able to take simultaneously with GSTR 9 topic, which I will be deliberating upon. Any queries left will be addressed at the end of the session. So with this, I just share my PPT. Here it is. No, it has to be reshared. It says it's not shared. 1 second. Now I think so it is visible.
Yeah, yes, ma'am, it's visible. All right. So participants, let me open the chat box. Yes, it is very much visible, ma'am. Thank you. All right, sir. And friends, are you all ready for GSTR 9? Can I see a few thumbs up in the chat box? Great, great, Ashfaq ji, thank you. So friends, Anjali ji, so good to see. All right, friends. So GSTR 9 for 24-25, I would say बहुत सारी anomalies थी. I will be making up a Hindi mix. So there were certain anomalies for the year 23-24 or backdated, which have been really corrected in this GSTR 9-9C forms. So table 8 में जो differences आते थे, reclaims के जो differences थे, all those have been corrected in GSTR 9-9C. But before I start the session, I want to ask you a few things. We have been filing the same form of GSTR 9 for past so many years. May I ask you, when you fill the figures of output in your GSTR 9, from where you pick those figures from? Quickly in the chat box. From where you pick those figures from? GSTR 1, books of accounts, okay. Pankaj ji said books of accounts. Ashfaq ji said 4. Alpa Daga ji said accounts, okay. Anybody else? Sir, Devesh ji, GSTR 1 figures are auto-populated because that is the only bifurcation of output which is available to the system to understand that what is B2B, what is B2C. GSTR 3B is a khichdi. It's a mix altogether. So it is GSTR 1 which bifurcation comes from. As a result, I would say you have to calculate the turnover. So the answer to this question is, somebody said 1, somebody said 3B, somebody said books of accounts, but I have left this issue blank. Why I left it blank? Because we need to calculate the turnover as per section 2 clause 6 of GST. Those who said books of accounts, let me ask you, if you take it from the P&L account, the audited trading and P&L account, there might be certain incomes of the proprietor in the capital account. There might be certain incomes which is not the part of his business books, but have been shown in the ITR. There might be certain incomes which are the part of 26 AS and have not been added. You know, there is a limit of 2 crores and 5 crores, which is applicable for GSTR 9 and 9C respectively for the year 24-25 also. Firstly, in order to calculate that limit of 2 crores or 5 crores, we need to check कि किसका 2 crore or 5 crore cross हो रहा है. How many 9 or 9C we are supposed to find. So, in order when you make that list, अगर आप सिर्फ 3B का टर्नओवर लेके चलते हैं तो हो सकता है 3B में कई ऐसी इनकम्स थी which were not accounted for, which were not sent to you by the accountant. But when you vigilantly check their P&L balance sheet which is finalized and you find कि कोई कमीशन आ रही है या कोई रेंटल इनकम्स आ रही हैं, कमर्शियल रेंटल्स, जिसके ऊपर जीएसटी पे नहीं किया गया है, so 3B cannot always be a correct base. How you can make a value addition to your client is when you take that P&L and balance sheet, you actually scrutinize, check what incomes, and in all totality, 5 years interest, etc., can be saved for the taxpayer when the scrutiny notices come later. So you need to see 3B, but at the same time, you need to calculate the turnover as per section 2 clause 6, which says there are certain, changes, certain things. How I do it, I explain you. I get 3B figure noted in an Excel sheet. I check GSTR 1 sales noted in the Excel sheet. हो सकता है 1 और 3B में फर्क हो और किसी एक में turnover ज़्यादा हो. Secondly, I also get noted the changes which are required for 2 clause 6. Example, inter-branch transfers, जो income tax की trading P&L में net off हो जाती हैं. But there are certain things जो आपको यहाँ पे inter-branch transfers account for करनी है 2 crore और 5 crore के लिए. Secondly, sale of fixed asset, which is the part of your depreciation chart.
we need to add that fixed asset turnover in order to reach the limit of 2 crore, 5 crore. So certain adjustments, sometimes cross charts, etc. All these adjustments should be made. The turnover should be checked as per 2 clause 6. And that should be rightly feeded in your GSTR 9. Friends, GSTR 9 is also statutory form. बहुत लोगों में I have seen sometimes whatever is the auto-populated figure, those are, the 9 is filed the same way. It is a statutory form. It is a return. It needs to be filled. It is in a proper way. It is the last chance for you to correct your errors in order to save the taxpayer from the hazards of interest or penalties later on. The disclosures that are given in GSTR 9C may even protect the client from the allegations of Section 74 later on while adjudication. 9(9)(c) को कई बार शो कॉज नोटिस इशू करते हुए कंसिडर नहीं करता है सिस्टम का, जो डिपार्टमेंट का सिस्टम है. If the appropriate notes are given there while filing 9C and the errors are corrected while filing GSTR 9, that can be a big savior. There have been lots of high court judgments which says, like we have Shanmuga Hardware, we have Ankit Kumar Agarwal, which says that GSTR 9 में भी अगर आपने करेक्शन कर ली है तो उसका बेनिफिट टैक्सपेयर को दिया जाएगा. As a professional, as a chartered accountant, you provide 2 types of opinion. When client करने जा रहा है, so नया ITC ले सकता है 9 में? Answer is no, नहीं ले सकता, because it is not as per the instructions of the form. However, and furthermore, it has to be routed through the credit ledger and so on. But high courts, on the basis of jurisprudence, we can say that if the taxpayer has committed the mistake which has been corrected in GSTR 9, so courts have advanced the benefits of correct filing of GSTR 9, and courts have mentioned कि अगर आपने 9 का corrections consider नहीं करना है, so make the form redundant. So the 9 form is very, very relevant. अगर कोई ऐसे टैक्सेस है, ऐसी इनकम्स है, ऐसे टर्नओवर्स है जिनके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया है, पे करना बनता है, तो आप उसको 9 में करेक्टली डिस्क्लोज करें. सो दैट इज व्हाई आई सेड यू नीड टू कंप्यूट एज पर 2 clause 6. जिनमें क्लाइंट्स आपके ट्रेवल एजेंट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं, और आप रूल 32 फॉलो करते हो, तो उसकी अपनी टर्नओवर कैलकुलेट होती है. GST में टर्नओवर एज पर GST रिपोर्ट होनी चाहिए. So you need to recalculate this. Right now, moving to the next point, spillover effects. Abhi Anurag sir was talking about spillover effects. Now, in case of spillover effects, last time तक हमें problem आती थी 3B is a mixture. 3B एक mixture है, उसमें हम segregate ही नहीं कर सकते. Last year का, इस साल, इस year का, next year गया, and so on. Now, the government has given a column 6A1. You know 6A में ITC ऑटो पॉपुलेट होकर आता है. अब वो जब ऑटो पॉपुलेट होकर आता है तो उसमें पिछले साल के इफेक्ट्स जो इस साल के हैं वो भी ऐड होके आ जाते हैं. हम कहते थे नीचे हमारा डिफरेंस आ जाता है जो लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स हमने इस ईयर किए हैं. नाउ दे हैव गिवन द कॉलम 6A1 फॉर द इनपुट्स ऑफ लास्ट ईयर टेकन दिस ईयर, कि आप उसको ऊपर ही 6A1 में माइनस कर दीजिए, सो दैट मेरी जो GSTR 9 है वो करंट ईयर के इंपैक्ट से ITC उसमें आए. टेबल 8 में जो 2B के अकॉर्डिंग ऑटो पॉपुलेट होगा उससे कंपेयर करने में इजी. So now you have 6A1 for the ITC spillover effects, but no separate column given for output spillover effects yet. Right? Now, let me draw a box for you. This we have already discussed कि 2 crore, 5 crore का limit is still applicable for GSTR 9 and 9C. What I want to say, हम जितना भी 9 we will be discussing is divided into 3 blocks. मैं explain कर देती हूँ. हम 24-25 की फाइलिंग करने जा रहे हैं. We are going to file 24-25. तो 24-25 का बैक ईयर था 23-24 and next year is 25-26. Now what is the problem?
गवर्नमेंट ने 23-24 के लिए करेक्शन टाइम पीरियड, मतलब आपको एनॉमलीज ठीक करनी है, पुराने क्रेडिट्स लेने हैं, टाइम पीरियड दे दिया नवंबर 30 तक। ओके, इसका मतलब मेरी 24-25 में पिछले साल का इंपैक्ट आया होगा जो मुझे अलग करना पड़ेगा। रीजन, भाई मुझे फाइलिंग, आई हैव टू फाइल इट फॉर द ईयर 24-25 व्हिच इज माय बेस ईयर। आई हैव टू फाइल इट फॉर 24-25 दिस ईयर, राइट। इसमें से जो पिछले साल के इफेक्ट्स है वो बाहर निकाल दीजिए, डिडक्ट दोज इफेक्ट्स, एंड 24-25 के लिए likewise we have time till 30th November 2025, जो अभी 18 days पहले पास हुआ, 30th November 2025 तक, because you had time to make the corrections for the year 24-25 and 25-26. So those things are to be added. पिछला बाहर निकाल दीजिए. We are standing on the block of 24-25. Remove the effects of last year, add the effects of next year pertaining to 24-25 to arrive at the correct figure of 24-25. So all these things have been based on the same criteria. I will come to the question of interest being part of the annualized turnover or not a little later. Keep it on hold for some time. Right. Now if I say GSTR 99C, yes, there is a good news. You can see the person dancing right in front of your screen. Otherwise भी लॉ में रिस्ट्रिक्शन पहले नहीं था, लेकिन एनुअल फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस कहती थी कि एनुअल फॉर्म में जब आप एनुअल रिटर्न ड्रॉप डाउन DRC 03 में सिलेक्ट करते थे, आपको उसका पेमेंट कैश में ही करना था. Additional liability at the time of filing GSTR 9 was required to be paid in cash only. However, कोई रिस्ट्रिक्शन लॉ में नहीं था. आज अगर हमें 73-74 का नोटिस भी आते हैं, टैक्स की डिमांड, एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट होती है, we can still pay it through cash. But the form had this instruction. Now the instruction from the form has also been changed to that it can be paid through cash or credit. Now it can be paid through cash or credit. So that is why additional liability now can be discharged through credit even by selecting DRC 03 annual return. The credit option will also pop out. So a point that has been changed. Now I come to the changes with this screenshot and its analysis, right? Now moving ahead, first of all, let me come to 6A1. Okay. 6A में ऑटो पॉपुलेट होकर ITC आ जाता है, बिकॉज 6 में ऑटो पॉपुलेट होकर ITC आता है. एज अ रिजल्ट उसमें लास्ट ईयर के ITC के इफेक्ट साथ में आ जाते हैं. रिमूव इट, बाहर कर दीजिए. 6A1 को में से वो इंपैक्ट डिलीट कर दीजिए. सो 6A2 में सिर्फ 24-25 का डेटा रह जाएगा. So net ITC of the financial year 24-25 will be left only in this, right? But इसमें अब उन्होंने pointers क्या दिए? सबसे पहले I will take you to this slide, or before this I take you to the slide of GSTR 3B. अच्छा एक बात बताइए, anybody who can tell me GSTR 3B का format change हुआ था? Do you remember? Can you tell me in which month it was revised and what was the revision? What was the revision and in which period was it revised? Okay, let me tell you. July 2022 3B का format revise हुआ था. उसमें difference क्या था? I want you to be with me because इसी difference पे मेरे सारे 9 के differences workout होंगे. अगर आप पुराना फॉर्म देखते ना, तो इस तरह से कुछ रिवर्सल्स आते थे. ऑटो पॉपुलेशन नहीं था, लाइक दिस, सॉरी, लाइक दिस, लाइक दिस. बट नाउ इन जुलाई 2022 वाइड नोटिफिकेशन 14/2022 एंड सर्कुलर नंबर 170. यस अल्फा जी, एब्सोल्युटली राइट. रिवर्सल का फर्क आया, ऑटो पॉपुलेशन का फर्क आया.
लेट्स सपोज आपने 100 रुपीज की, लेट मी चेंज द कलर, आपने 100 रुपीज का इनपुट लेना था, बट 20 में से गुड्स आपको रिसीव ही नहीं हुए. चलो वी टेक द एग्जांपल ऑफ ACAE. ACAE में किसका नाम ले, लेट्स टेक नेम ऑफ रोहित जी इटसेल्फ. रोहित जी ने एक साड़ी, he was supposed to send to person in Amritsar who is a dealer. साड़ी भेजी which month? March 31st को. साड़ी is received, the garment is received in the month of April 2025. अब what happened? ट्रेडर ने या द मर्चेंट उसने तो डाल दिया आपके जीएसटी, आपने GSTR 1 में और 3B में, ऑटो पॉपुलेशन हो जाएगा. ITC का 20 रुपीज का ITC है, that gets auto populated in the month of March 25 itself. March 25 itself. But the goods are received in the month of April 25. So I cannot take the credit. Make it a point. The officers also, while adjudicating, calls for the ledgers of the last days of purchases in order to check कि जो goods consignments later part of the month में चले हैं और जिनका transit का period था, आपने उनका credit early तो नहीं ले लिया, in order to call for the interest on the same. So आपने कहा मुझे तो 20 रुपीज लेस करने हैं, अल्टीमेट ITC मुझे 80 रुपीज का लेना है. What this format change said, आपको 100 ऑटो पॉपुलेट होगा, ऑटो पॉपुलेट होगा. 20 रिवर्सल के कॉलम में डालिएगा, 4B2 में डालिएगा, बिकॉज यू आर सपोज टू नॉट इन 4B1. 4B1 means for permanent reversal. You have to take this ITC again in the month of April 2025. So put it in 4B2. What you are supposed to do, आपको 100 ऊपर ऑटो पॉपुलेशन में आने दीजिए, 20 नीचे कट कीजिए. अगर मतलब किसी चीज को हटाना है तो आप ये मत कीजिए कि 100 को उठा के सीधा 80 लिख दीजिए. नो, मेनी पीपल थिंक कि हम तो ITC कम कर रहे हैं तो हमें नोटिस तो नहीं आएगा, बढ़ा थोड़ी रहे हैं जो ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है. रादर बढ़ाना अलाउड है. क्यों अलाउड है? अब अगले महीने का सोचिए, आपका ITC 150 था अप्रैल में, आपने 20 पिछला लेना है प्लस 20 विच इज कॉल्ड रिक्लेम. रिक्लेम जो आपने 4B2 में रिवर्स किया था, अब आप उसको दोबारा ले रहे हैं. दिस वन रिक्लेम आप जो भी कर रहे हैं उसको मेंशन कर दीजिए अदर डिटेल्स में 4D1 में, एंड यू आर सपोज टू ऐड दैट इन द नेक्स्ट मंथ. पिछले में रिवर्सल करिए, अगले में ऐड करिए. जिस पर्सन ने ये नेट बेसिस यूज किए होंगे 80 लिया होगा, अगली बार जब वो 20 लेगा तो वो बोलेगा पिछली बार तो आपका रिवर्सल ही नहीं था, आपके रिक्लेम और रिवर्सल लेजर में ही कुछ नहीं है, एंड यू आर टेकिंग अगेन मोर देन द ऑटो पॉपुलेटेड पे. कई बार फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरे अगले महीने का ज्यादा होता है, वो अगले महीने पोस्टपोन होता है. But what is the correct way of filing GSTR 3B? Do not change the auto-populated figure. If you want reversals, do it in permanent or temporary as per their nature. काटना है ना, reduce करना है ना, reversal में जाके करिए, auto population में मत करिए. And reclaim करना है तो 4D1 में दिखाइए, show it in 4D1. अब reclaim की बात कर रही हूं मैं. reclaim कई तरह के हो सकते हैं. जैसे मुझे गुड्स नहीं पहुंचे, मैं रिक्लेम करना चाहती हूँ. नाउ आई कम बैक टू माय the GSTR 9 columns that have been changed this year based upon the changed format of GSTR 9. Now see, उन्होंने बोला रिक्लेम करने जा रहे हो, मैं रिक्लेम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा. रिक्लेम ड्यू टू 37A रूल. व्हाट इज 37A? 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो रिक्लेम कर लीजिए. व्हाट इज 37? मतलब रिवर्स करिए, रिक्लेम कर लीजिए जब पे करोगे. व्हाट इज 37A? अरे सामने वाले ने 3B नहीं भरी, सप्लायर ने 3B नहीं भरी टिल सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो आपको 30 नवंबर से पहले उसको रिवर्स करना है, और जब वो 3B भर देगा आपको रिक्लेम मिल जाएगा. 3B ऑफ द सप्लायर की वजह से जो आपका रिवर्सल होता है, दैट इज अंडर 37.
अब एक बात बताओ, ये दोनों जो रिवर्सल्स है ना, इनका नेचर पता है क्या है? आपने लेने हैं ना, तो उसके लिए 30 नवंबर का टाइम पीरियड नहीं लगता। जब 180 दिन के बाद पेमेंट करोगे, whenever you pay it, you can take the reclaim. जब भी आप सप्लायर 3B भरेगा, अब 3B भरने के लिए भी 3 इयर्स है, जब वो 3B भरेगा तो आप उसका आईटीसी ले पाएंगे। इट मींस ये दो रिवर्सल्स ऐसे हैं जिनके लिए 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर का टाइम पीरियड नहीं लगता, नहीं लगता, राइट? सो गवर्नमेंट ने कहा अब आप हो सकता है 30 नवंबर को लो, अगले साल दिसंबर में लो, जनवरी 26 में लो, मार्च 26 में लो। सो मैं ट्रैक नहीं रख सकते। एज अ रिजल्ट जो इन दोनों रूल्स की वजह से रिवर्सल होगा, रिवर्सल के बाद उसका रिक्लेम होगा, उस रिक्लेम को हम उसी साल का आईटीसी मान लेंगे जब आप उसको रिक्लेम करोगे। मींस अगर मैंने जनवरी 26 में किया तो वो 26, 27, 25, 26 का आईटीसी माना जाएगा। आपने उसको जिस ईयर में लोगे, दिस रिक्लेम विल बी टेकन एज द आईटीसी ऑफ द ईयर टू इन विच इट इज बीइंग रिक्लेम्ड। अब ये उसी साल का रिक्लेम बनेगा, तो ये हमेशा 6H कॉलम जो रिक्लेम के लिए बना है उसमें होगा। फ्रेंड्स, अब आपको 6B और 6H में बाइफिकेशन करना बहुत जरूरी है। आई विल कम टू 6H। रिक्लेम समझ लीजिए, देन आई विल शो यू विद द एग्जांपल्स। नाउ अब इनके अलावा कोई रिवर्सल्स है? कौन से रिवर्सल्स? अरे गुड्स नहीं पहुंचे थे मार्च एंड तक या मंथ एंड तक, आपने 2 बार रिक्लेम किया, ड्यूरिंग द ईयर भी तो हो सकता है। और सेकेंडली आपके पास टैक्स इनवॉइसेस नहीं आए थे, और ड्यू टू एनी आपने गलत ले लिया था, उसको आईटीसी को गलती से लिया, रिवर्स कर दिया, गलती से दोबारा लेना है। सो मेनी थिंग्स कैन बी देयर इफ द आईटीसी इज रिवर्स्ड एंड रिक्लेम्ड अदर देन ड्यू टू रूल 37 एंड 37A। अरे इसके लिए तो डेट 30 नवंबर ही होगी नेक्स्ट ईयर की। Returns filed up to 30th November of next year. As a result, इसको तो हम उसी साल का आईटीसी मानेंगे जिसको ये एक्चुअली बिलोंग करता है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट तो अगले साल 30 नवंबर तक आपने करनी है। और जीएसटीआर 9 में इसके लिए उन्होंने पार्ट 5 ऑलरेडी बनाया हुआ है। ओके, इसका मतलब अगर मैंने कोई ऐसा आईटीसी लिया है तो वो टेबल नंबर 13 में चला जाएगा इस साल 24-25 में, यानी 24-25 का आईटीसी which you have taken up to 30th November 25 returns will be considered as the ITC for the year 24-25 itself, to be reported in part 5 table number 13 of GSTR 9 of 24-25, और अगले साल 25-26 में वो पास्ट ईयर का आईटीसी बन जाएगा, क्योंकि वो 24-25 का ही काउंट होगा। तो अगले साल जब जाओगे ईयर ऑफ रिक्लेम में, तो आप उसे रिमूव कर देना 6 से 1 में डाल के। और मैम वो 8C में भी डाल सकते हैं? सॉरी 8C में भी डाल सकते हैं? 8C सर, मोहित जी 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। मैंने जो डेलिबरेटली टेबल 13 लिखा है, क्योंकि इस बार 8C और टेबल 13 के मैचिंग में डिफरेंस है। आई विल लेट यू नो कि 8C में कब डालना है और कब नहीं डालना। शॉर्ट में बता देती हूँ, रिक्लेम वाला आईटीसी 8C में अब आना बंद हो गया है। पिछले साल तक टेबल 13 8C से मैच करता था, अब से हर केस में टेबल 8C 13 से मैच नहीं करेगा, and there is a very valid reason for the same. I will come to it in a minute. Now आपको इस बार का आईटीसी अगले बार लिया है टेबल 13 में डाल दो, और अगले साल में उसको बाहर निकाल देना 6 से 1 में डाल के। सो रिक्लेम को डिवाइड कर दिया गया। अब आपका रिक्लेम का एक प्रॉपर कॉलम पिछले साल भी था, इस साल भी है, 6H। 6H। और मजेदार बात पता है क्या है? जब ये मैचिंग करने जाएगा टेबल 8 से, आई शो यू हियर, लेट मी कम टू टेबल 8। जब ये मैचिंग करने जाएगा ना टेबल 8 से, तो अब पिछले साल तक वो 6B और 6H
दोनों को जोड़ के 2B से मिलाता था, जिसकी वजह से हम कहते थे ओहो मैंने तो 20 रुपीज आईटीसी लिया, 20 रिवर्स कर दिया, 20 दोबारा ले लिया, तो बट 2B में कितनी बार आएगा, एक बार 20। और जब वो 9 में पिक कर लेता था, 9 में, तो वो कहता था लिया कितना 40, रिवर्स कितना किया 20, और वो इस 20 और इस 40 को कंपेयर करता था और बोलता था आपने एक्सेस लिया है, क्योंकि रिवर्सल को तो कंसिडर करता नहीं था। दिस वाज अ मेन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस ईयर। जब आप उसको 6B और 6H में तोड़ देंगे तो वो सिर्फ ये वाला 20 उठाएगा जो आपने रिक्लेम करके 6H में डाला होगा, दैट विल नॉट बी पिक्ड फॉर कंपैरिजन इन टेबल 8। सो आप जो कहते थे मेरे एडी में डिफरेंसेस रिक्लेम की वजह से आती हैं, that will now be stopped. Now 8B will be equivalent to 6B only and not compared with 8H. Practical example करके देखें। Okay. So देखो, अगर तो आपने 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया है तो आपके ऊपर ये वाला रूल लगेगा, जहां 180 डेज है या 37 है, ऑल दो एक एनॉमली है 37A में, बट एनॉमली थोड़ा एंड में देखेंगे, टाइम विल परमिट। As of now, I am explaining the form as it is. Now, अब देखते हैं रिवर्सल और रिक्लेम के प्रैक्टिकल केसेस को, इन्हीं पॉइंट्स को थ्रू एग्जांपल्स। अच्छा, ड्यू टू 37 है, अरे ये तो 180 डेज वाला केस है। रिक्लेम उसी साल का आईटीसी माना जाएगा जिस साल में लोगे, राइट? अदर देन 37 में आईटीसी उस साल का माना जाएगा जिस साल को एक्चुअली पर्टेन करता है। अब पहले देखते हैं 37 और 37A वाला 180 डेज वाला। एक बिल अप्रैल 24 में आपने परचेज का लिया, आईटीसी ले लिया 100 रुपीज। 180 डेज निकल गए, आपने पेमेंट नहीं की, आपने उसको रिवर्स कर दिया, राइट? एंड आपने दोबारा पेमेंट कर दी सेम ईयर में। फ्रेंड्स, मैंने हर तरह से एग्जाम्पल ड्राफ्ट की है, सेम ईयर में लिया या अगले साल में लिया। कुछ लोगों ने ग्रॉस मॉड फॉलो किया है, कुछ लोगों ने यानी 100 माइनस 20 80, कुछ लोगों ने नेट मोड फॉलो कर लिया, सीधा काट के 80 कर दिया, कुछ लोगों ने पार्ट ऑफ द ईयर के लिए आईएमएस फॉलो कर लिया। मेक इट अ पॉइंट, तीनों सिचुएशंस में मेरे 9 के कॉलम चेंज हो जाएंगे। उन तीनों सिचुएशंस में मेरे 9 के कॉलम क्या बनेंगे, इस पीपीटी का पार्ट है। We will be discussing that as the time progresses. Now, in this example, 100 लिया, 100 रिवर्स कर दिया, 100 उसी साल में पे कर दिया था, I took it again. अब सोचिए 3B से 9 में ऑटो पॉपुलेशन है। 3B में आपने कितनी बार आईटीसी लिया, 2 टाइम्स 200, ये गया 6A में 200 ऑटो पॉपुलेटेड। ओके, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यू नीड टू बाइफिकेट इट इनटू 6B। लेट मी हाईलाइट इट इन द कॉलम 6B। oh too dark, sorry, let me erase it a little lighter, into 6B and 6H। वेरी इंपॉर्टेंट बाइफिकेशन। आपने कहा 200, देखो रिवर्सल में 7A गया हुआ है, अल्टीमेटली नेट इंपैक्ट तो 100 रुपीज का ही आ रहा है। 200 लिया, 100 रिवर्स किया, बट जब कंपैरिजन के लिए टेबल 8 में जाना है, 8 में आएगा 100 रुपीज, क्योंकि एक ही बार ऑटो पॉपुलेट होगा 2B से, माइनस अब वो सिर्फ 6B उठाएगा कंपैरिजन के लिए 100। एज अ रिजल्ट 8D में आपका लैप्स नहीं आएगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6B, राइट? अब यही रिवर्सल अगर अदर देन 37A का होता, मीनिंग गुड्स नहीं आए थे, सेम ईयर में आ भी गए, मतलब नेक्स्ट मंथ ही आ गए, मई के मई में, तो आपने ये 2 एग्जांपल्स क्यों बनाई? इसमें भी तो रिक्लेम सेम ईयर में ही है, तो बाइफिकेशन तो वैसे ही होनी है। मैंने ये 2 एग्जांपल्स इसलिए बनाई बिकॉज आई वांटेड यू टू सी द डिफरेंस ऑफ टेबल 7। हैव अ लुक, इसमें मैंने रिवर्सल के लिए
टेबल 7A यूज किया है, क्योंकि ये रिवर्सल 37 रूल का था, या 37A का होता तो 7B में जाता. But in the next example, I have used table 7H. Reason? Table 7 is now mandatory. Table 7 जिसमें रिवर्सल्स आते हैं, आपको हर तरह का रिवर्सल उसके अलग अलग कॉलम में दिखाना है. 7A, 7B, 7C, 7D. और अगर आपने ये गलती की तो इसका इम्पैक्ट एजुकेशन में क्या हो सकता है? लेट्स सपोज आपने रिवर्सल किया 17.5 का और आपने उसको डाल दिया 37 के कॉलम में, तो ऑफिसर कह सकता है आपने तो खुद ही डिक्लेरेशन दी है, मैंने 17.5 वाला कोई रिवर्सल किया ही नहीं है, आपने जो 37 का कर दिया वो आपने एडिशनल कर दिया. आई एम नॉट कंसर्न्ड विद इट, बट आपने 17.5 का नहीं किया है. सो फ्रॉम दिस ईयर टेबल 7 रिवर्सल नीड्स टू बी बाइफिकेटेड एज पर द सब्जेक्ट. सो दैट इज, अब इसमें तो सेम ईयर में ही आईटीसी ले लिया था, तो वो उसी साल का रिक्लेम बनना था, इसलिए हमने उसको 6H में ही डाला. व्हाट इफ 23-24 का रिक्लेम 24-25 में किया? ओ, पिछले साल का ब्लॉक इस साल को इंपैक्ट कर रहा है, पिछले साल का ब्लॉक इस साल को इंपैक्ट कर रहा है. बट देखो तो सही, विच वन इट इज? It is other, sorry, this is other than 37, 38, 37 है. ओ, other than में तो रूल था जिसका है उसी का मानो, जिसका है उसी का मानो. इसका मतलब अगर आपने इस साल में रिक्लेम किया है तो मुझे उसको रिमूव कर देना है. आपने एक आईटीसी 23 अप्रैल में लिया, 23 अप्रैल में ही उसको रिवर्स कर दिया, आपको बिल बहुत लेट आया, आपने उसको मई 24 में ले लिया. पिछले साल का आईटीसी इस साल जो मैं 24-25 फाइल करने जा रही हूं उसको इंपैक्ट कर रहा है. फ्रेंड्स, इन द पीपीटी यू विल सी कि मैंने 3B के कौन से कॉलम्स आपने भरे होंगे उसमें लिखा है. वो फिगर आपको कहां से ट्रेस हो सकती है? आई हैव मेंशन दैट थिंग ऑल्सो. सो आप 24-25 की रिटर्न भर रहे हैं, हम 23-24 की एक रिक्लेम उसको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि अदर देन 37-37A का है. रिमूव कर दीजिए इसको. जब मैंने 3B भरी होगी, ये 100 रुपीज उसमें गया होगा 24-25 में, क्योंकि 3B में गया, ये ऑटो पॉपुलेट हो गया होगा टेबल 6A में, ये वाला 100, क्योंकि यही गया 24-25 की 3B में. बट ये तो रिक्लेम पिछले साल का है और 37-37A की वजह से नहीं है. रिमूव इट इन 6A1. 0. लास्ट ईयर के आईटीसी के इंपैक्ट खत्म. देखिए, फ्री हो गया हम उनसे. लास्ट ईयर आईटीसी इंपैक्ट बीइंग वाइप्ड आउट. कई लोगों का ये एक क्वेरी हो सकती है. अभी वैसे एक एक्सेल शीट विच आई मेक फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ऑफिस, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ऑरली चीजें कम समझ आती हैं. दैट इज व्हाई आई यूज ऑलवेज द राइटिंग टेक्निक्स, द ओल्ड स्कूल. So when staff used to come and say me, ये figure नहीं match है, ये figure नहीं match है, so I say that bring me a comprehensive set for the analysis right in front of me. So I get the entire data summarized in the form of Excel sheet, and in Excel sheet ये columns सारे embedded किए गए हैं. Definitely this PPT and that Excel sheet will be shared with you all through the platform of ACAE. Right? All right. चलिए. Now, अब अगर ये आईटीसी 37-37A का होता, नो, फिर तो ये 24-25 का ही आईटीसी माना जाता. सेम एग्जाम्पल, बट दिस टाइम इट इज 37-37A. अरे ये आईटीसी ना 24-25 में लिया है और ये 24-25 का ही माना जाएगा. इसको 6A1 में जाकर वाइप आउट मत करिए. तो क्या करें? ये 100 रुपीज यहाँ ऑटो पॉपुलेट हुए हैं ना, ये आईटीसी भी इसी साल का माना जाएगा, बट ये है रिक्लेम. ओके, ये रिक्लेम है तो इसको 6H रिक्लेम में ले जाओ ना. वाइप आउट नहीं करेंगे आप 6A1 में. दिस इज द डिफरेंस ऑफ reclaims which are under 37-37A or other than 37-37A.
मोस्टली योर reclaims other than 180 days and सामने वाला का 3B not filed की वजह से will be going to other than me, वो 6A1 में वाइप आउट हो जाएंगे। और अब ये तो पिछले साल का इस साल इंपैक्ट कर रहा था, व्हाट अबाउट इस साल का अगले साल गया है? अभी अभी तो 30th नवंबर निकली और आपको पता है यू आर सपोज टू फाइल GSTR 9 पोस्ट नवंबर, क्योंकि अब आपकी टेबल 8 की फिगर्स भी चेंज होंगी। क्योंकि अभी हम देखेंगे हाउ, जैसे आप निकाल रहे हो ना, पिछले साल बाहर करो, अगला साल इन करो, अब आपका टेबल 8 भी सेम पॉइंट से आएगा। सो दैट इज वाई वो 30th नवंबर को स्टिल होना था पिछली अमेंडमेंट्स की वजह से। सो फ्रॉम 1st December यू आर सपोज टू फाइल GSTR 9। However, अगर आपको कोई अमेंडमेंट्स नहीं थे, could have filed it earlier also. Now, इस साल का ITC था, लिया अगले साल। ओ ये वही साड़ी है जो मेरे तक नहीं पहुंची थी। नो, हाँ, यस यस, अप्रैल 24 में एक बिल नहीं आया था, हमने ऑटो पॉपुलेट हो गया ITC, क्योंकि अब 3B में ऑटो पॉपुलेट होता है, हमने उसको रिवर्स कर दिया। जो रिवर्स किया, अगेन देखो टेबल 7 के कॉलम्स चेक करना, आई हैव यूज्ड 7H, जो रिवर्स हो गया, राइट। जो ITC लिया मैंने 24-25 में, वो तो यहां चला गया, ये वाला 6A में। बट जो अगले साल लिया, द ITC विच आई हैव क्लेम्ड इन नेक्स्ट ईयर, वो आया ही नहीं, वो आया ही नहीं, और वो अदर देन 37 है। ITC तो इसी साल का माना जाएगा, बट कब लिया मैंने? 30th नवंबर से पहले ले लिया। अरे टेबल नंबर 13 में ले जाइए ना, इस साल का ITC अगले साल लिया, रिक्लेम किया टेबल नंबर 13 में। एंड द वन यूजर हु आस्क्ड मी, sir, don't do drawing on it. Thank you. All right. Now I come to 8C. I come to 8C. If I come to 8C, this one, this 8C, sir, FAQ 16 का मैंने हर जगह FAQ रेफर किया हुआ है। FAQ 16 कहता है कि अगर एक ITC इस साल का आप अगले साल रिक्लेम कर रहे हैं तो सिर्फ 13 में डालिए, 8C में नहीं डाल। क्यों? क्योंकि 8A से कंपेयर होता है और रिक्लेम 2 बार ही नहीं आता। सो सिर्फ जो ITC पहली बार लिया है पोस्ट मार्च 25, सिर्फ वही 8C में जाएगा। जो रिक्लेम होगा वो अकेला टेबल नंबर 13 में आएगा, अकेला 13 में आएगा। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस पॉइंट क्लियर। अदरवाइज भी इसमें एग्जाम्पल्स जो है वो फर्निश की गई हैं। अब यही ITC अगर 37 का होता तो दिस रिक्लेम 25-26 का माना जाएगा। क्योंकि ये 25-26 का माना जाएगा, ये कहीं नहीं आएगा 24-25 में, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टेबल 8C एंड टेबल 13 of GSTR 9 of the year 24-25. So ultimately reclaims को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 7 केसेस मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। 7 के 7 केसेस की समरी राइट इज इन फ्रंट ऑफ यू, रिवर्सल एंड रिक्लेम। रिक्लेम चेक करिए, 37 का है या अदर देन है। अब ये क्वेरी बहुत पॉप आउट हो रही है, लास्ट ईयर का RCM था, इस साल टेकअप किया, क्योंकि अक्टूबर 25 से अक्टूबर में जो RCM है वो कई जगह पे इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे रेंटल में, राइट। कई लोगों को पता नहीं था कमर्शियल रेंट हैज नाउ कवर्ड अंडर द RCM। ऑडिट करने के लिए आया जब सितंबर 25 में, सो हमने बोला कि आपको इस पे पे करना था। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि लास्ट ईयर यानी 24-25 का जो RCM है आपने 25-26 में किया, तो आप उसको कहां कंसिडर करेंगे? एज पर द गवर्नमेंट FAQ issued, RCM of the last year which is paid in the year 2 has to be part of the GSTR 9 of 25-26 only.
पीपल यू कैन कंसिडर कि हम उसको टेबल नंबर 10 में आउटपुट दिखा दें या टेबल नंबर 13 में इनपुट लिया है अगले साल 30 नवंबर तक, उसमें आई हैव अ रिजर्वेशन टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में आरसीएम के इंपैक्ट्स नहीं आते। आप देखना वो 4n कॉलम जो इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू आरसीएम का होता है ना, वो उसको काट देता है वहीं पे। सो अगर आप इसको टेबल 10, 13 में डालोगे ना तो वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई को डिसरप्ट कर देगा। सो मेनी पीपल ऑल्सो डू कि वो मतलब सप्लाई के अमाउंट में नहीं डालते, सिर्फ टैक्सेस में डालते हैं। बट एज पर एफएक्यू ये 25-26 में जाएगा। अब बट हमें कई बार जब एजुकेशन कराते हैं या अदरवाइज ये पे हुआ है या नहीं, डाउन द लाइन 5 years वी डू नॉट रिमेंबर एंड वी आर अनेबल टू रिकॉल। सो जहां तो मेरी 9C दोनों जा रही हैं, आई एम गिविंग दिस थिंग कि बेस्ड अपॉन द एफएक्यू मैंने इसको पे किया हुआ है और मैं इसको 25-26 के रिटर्न में दिखाऊंगी। आई एम नॉट शोइंग इट इन द GSTR 9 ऑफ 24-25, बट इट हैज बीन ड्यूली पेड इन so and so month in the next year. Where 9C is not there, some are resorting to कि हम सप्लाई में ना दिखाए, 10 और 13 में दिखा दे, बट टैक्स इंपैक्ट होंगे सप्लाई के, हाँ, क्योंकि 13 कंसिडर नहीं होगा, 10 आपका कंसिडर होगा सप्लाई के लिए। सम आर इवन डूइंग 10, 11, 12, 13 चारों में दिखा दो, नेट इंपैक्ट 0, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिमेम्बरेंस कि हाँ आरसीएम अगले साल पे हुआ है, so you can show it that way with net impacts 0. As per FAQs, it has to be shown in the year 25-26, 25-26 and not in the same year. Sir, आपके वाला क्वेश्चन ना 8C में कौन से अमाउंट डाले? जो रिक्लेम हो गया, एक बार ही रिक्लेम कर लिया, रिवर्स किया एंड रिक्लेम किया, उसको 8C में नहीं दिखाना, वो सिर्फ टेबल नंबर 13 में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे आईटीसी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पहली बार लिए ही मैंने 25-26 में है, पोस्ट मार्च 25, बिफोर 30th November 25, राइट? इन दैट केस एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, मेरा आईटीसी था 1,21,000 IGST का, सॉरी, राइट, एंड मैंने 1000 मेरे 2B में आया ही नहीं, वो आया ही जून 25 में। सो मैंने एज ए कंप्लायंट टैक्स पेयर 120 लिया। जब आया अगली बार जून 25 में, तभी पहली बार ले लिया 30th नवंबर तक। सो ये 8C में भी आएगा और टेबल नंबर 13 में भी आएगा। बट जो reclaims होंगे like in the previous example, that will only go to table number 13. Now in all situations your 8C is not going to equal to table number 13, right? और एक चीज, एक anomaly, although the very learned speaker in the next session will be discussing 9C, but just a small link I would like to share. 6A आने की वजह से, let me take a darker color, 6A1 आने की वजह से 9 में से पिछले साल के इंपैक्ट वाइप आउट हो चुके हैं। बट A9C के इस कॉलम में अभी भी पिछले साल के आईटीसी के इंपैक्ट लेने के लिए कहा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड आईटीसी आ सकता है। दिस इज एन एनोमली। 6A1 आने की वजह से 12B में फिगर डालने से इट कैन रिजल्ट टू अनरिकंसाइल्ड आईटीसी बिकॉज इट बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर आईटीसी अवेल्ड इन 24-25, for which you have already wiped that out in 6A1 of GSTR 9. Hence, I am not filling this column 6B क्योंकि मैं डिफरेंस नीचे नहीं ला रही हूं। I am giving a note कि 12B column is not stated because the effects of last year are already wiped out through 6A1 of GSTR 9. So this anomaly has also been highlighted earlier, friends, later in this PPT. Friends, last year तक कुछ लोग 6M को यूज कर रहे थे। Here, you are not supposed to use 6M. It is again very clearly restricted कि 6M column
only and only meant for ITC which are not taken through 3B. So, और क्योंकि अब लास्ट ईयर इम्पैक्ट 6A1 के थ्रू वाइप आउट हो रही है, तो अब आपका 6J कॉलम में डिफरेंस 0 होना चाहिए. अगर आपका, क्योंकि लास्ट ईयर में क्या होता था, देखिए लास्ट ईयर का जो आईटीसी होता था वो यहां इंपैक्ट करता था. रिक्लेम को आप 6H से हटा देते थे क्योंकि वो टेबल 8 में कंपेयर करता था, आप उसको 6M में डालते थे. अब तो 6H को उसने कंपेयर ही नहीं करना टेबल 8 से. Now it is not going to compare. So you can safely put your reclaim in 6H. Safely put your reclaim in 6H, and last year effects being wiped out in 6A1. Hence, your 6J should not be with the figure. It should be 0. Right? Again, मैंने HC का भी एग्जाम्पल दिया है. लास्ट, अब देखो इसमें भी क्या था, मेरा ऑटो पॉपुलेशन हुआ 120. ये अगेन पूरा एग्जाम्पल मैंने पोस्ट किया है विद 6 टेबल से लेकर 8 तक. अब यहां पे भी मैंने 8C का इंपैक्ट दिखाया है कि आपको 8C में रिक्लेम्स को रिपोर्ट नहीं करना है. सो दिस इज द एनॉमली व्हिच आई हैव शोन हियर. नाउ लेट मी कम टू द टेबल A. 6M कॉलम का इंस्ट्रक्शन को स्कोप 6M का प्रॉपर्ली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. 7 कॉलम में 37A रूल ऐड किया गया है. आई हैव एन ऑब्जेक्शन ऑन दिस 37A. एनी हाउ 7 के सारे कॉलम्स आर नाउ मैंडेटरी फ्रॉम 24-25 ऑनवर्ड्स. अब जरा आते हैं टेबल 8 पे. टेबल 8 में क्या चेंज किया गया, याद है हम 3 ब्लॉक्स की बात कर रहे थे. व्हाट वर दोज 3 ब्लॉक्स? What were those 3 blocks? Starting में I started with the same. Was हम 24-25 का फाइलिंग कर रहे हैं. मेरी GSTR 24-25 के बेसिस पर ही होनी चाहिए. उसमें लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर के इंपैक्ट्स नहीं होने चाहिए. सो एज अ रिजल्ट आपको क्या करना है, आपको पिछला साल कट कर देना है और अगला साल भी इस साल के इंपैक्ट जो इस साल आए हैं उनको माइनस करिए ना. सो वो भी यही करेगा. जब आपकी टेबल 8A में वो 2B से फिगर ऑटो पॉपुलेट करेगा तो वो 24-25 के जो 24-25 में आया वो तो लेगा ही, बट एट द सेम टाइम जो 23-24 के इनवॉइसेस इस साल आ गए हैं 30 नवंबर 24 तक, उनको खत्म कर देगा, लेस कर देगा. इवन अब 2B की जो फिगर इंपोर्ट होगी उसमें से 23-24 वाले इनवॉइसेस, मींस इनवॉइस बेस्ड चलेगा, माइनस कर देगा. और जो 25-26 वाले इनवॉइसेस होंगे, ये वाले 25-26 के 2B में जो 24-25 वाले इनवॉइसेस आ रहे होंगे उनको ऐड करके आपको एक मैचिंग बेस देगा विद टेबल 6. Many people say this figure gets converted to 2A. No, it doesn't. I have already checked क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो 2A में होती हैं जो 2B में नहीं है. सो ये 2B की फिगर उठा के उसमें 2 चेंजेस करेगा, पिछले साल के इंपैक्ट कट करेगा और अगले साल के इनवॉइसेस जो 24-25 को परटेन करते हैं उनको ऐड बैक कर देगा. राइट? सो अब टेबल 8D में जो डिफरेंसेस आएंगे, you need to have a proper explanation for the same. कई जगह पे लोगों ने नेट बेसिस फॉलो किया, कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं वो रिवर्स किए गए हैं, बट वो रिवर्सल टेबल 8 के लिए मैच कंपेयर करने के लिए कंसिडर नहीं हो. सो व्हाट आई से कि अगर आपके टेबल 8 में फिर डिफरेंस जो आ रहा है कम से कम उतना रिवर्सल आपने उसको दिखाया हो, सो दैट इज द सूटेबल वे, बट वो डिफरेंस आना नहीं चाहिए. नाउ 8A टेबल की डिटेल आप एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं. आई विल शो यू द एक्सेल शीट ऑल्सो. आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. लेट मी शेयर दैट टू. Here it is. Share this Excel sheet here.
इस तरह से यू कैन डाउनलोड दिस B2BA की वो फिगर 8A की ऑनलाइन कैसे बनाई गई है, लेकिन माइंड इट अ पॉइंट, 8A की ऑनलाइन फिगर और इस एक्सेल शीट की फिगर में भी मिसमैच हो सकता है। फ्रेंड्स, ये चीज हमें तब समझ आती है जब हम कितनी देर तक वी कीप अ टसल, यू कीप ऑन टसलिंग की हो ये क्यों मैच नहीं कर रहा है, एक्सेल इटसेल्फ इज नॉट मैचिंग विद 8A. The reasons have been given in FAQ. Let me show those to you. There can be the reason of amendments, place of supply amendments, and such other changes जिसके बेसिस पर वो शो नहीं कर रहा होगा. अगर आपके ऐसे कुछ डिफरेंसेस आए तो यू कैन रेफर, बिकॉज दिस इज अ समराइज्ड फॉर्म, ये 5 रीजंस की वजह से, अदर देन द टेक्निकल ग्लिच, क्योंकि कई टेक्निकल ग्लिचेस में 8A ही ब्लैंक आ रहा है. सो वो जब आप टिकट रेज करते हो उसको करेक्ट कर देते हैं. सो 8A वर्सेस टेबल 8A एक्सेल एंड ऑनलाइन में फर्क हो सकता है. एज पर FAQ 8A ऑनलाइन इज द करेक्ट डॉक्यूमेंट. फिल्टर्ड आउट फिगर, इसमें ITC कम होगा. कारण हो सकते हैं RCM वाली कवर्ड सप्लाई, मैंने पूरा एग्जाम्पल बना के दिखाया है और ये डिफरेंसेस के 3 एग्जाम्पल आगे भी दिए हैं. Example number 1, example number 2, example number 3, right? और कुछ B2B अमेंडेड किए गए, नॉर्मल से रिवर्स चार्ज में डाल दिए गए, प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज कर दिया गया. इनकी वजह से एक्सेल और 8A में फर्क आएगा. 8A ऑनलाइन इज अ स्क्वीज्ड फिगर, so you can trace out the difference due to this reasons. Even 2B और 8A में भी डिफरेंस आ सकता है. There might be possibility कि 2B और 8A में भी डिफरेंस हो. In that situation, you can say invoice of 30, example I'm giving you, एक पर्सन ने, आपके सप्लायर ने GSTR 1 भर दी, आपके सप्लायर ने GSTR 1 भर दी, जिसकी वजह से आपके 2B में तो ITC आ गया, बट उसने 3B नहीं भरी. क्योंकि उसने 3B नहीं भरी, वो 8 टेबल में 8A में उसकी फिगर ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगा. This will result in a mismatch between your 2B and your 8. बिकॉज उसने 1 फाइल की, 2B में आ गया, बट 3 नहीं भरी, तो ऑटो पॉपुलेशन नहीं होगा. राइट? चलिए, द नेक्स्ट चेंज. अब हम टेबल 8 में कुछ और चेंजेस आए हैं. जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स. फ्रॉम टाइम सिंस वी वर सेइंग कि बाकी ITC के लिए तो 30 नवंबर में अगले साल में जो एडजस्टमेंट्स की गई हैं उसके लिए कॉलम है, बट इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए अगले साल में किए चेंजेस का कॉलम नहीं है. नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 8H1, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ITC का नेक्स्ट ईयर में किया हुआ एडजस्टमेंट. नाउ यू हैव दैट कॉलम. This is a complete examples from table 6 to table 13. However, the impacts have been shown in the earlier PPTs itself. Oh, so we are out of the tables of input 6, 7, 8, and now we are coming to table 9, output का table. Table 4, 5 में कोई change नहीं है. Table 9 में they have given 2 columns. अल्टीमेटली अब पेड का टोटल इन कॉलम्स का यहां लगाया जाएगा एंड पेबल माइनस पेड किया जाएगा. आउटपुट का लास्ट ईयर का इंपैक्ट कोई टेबल नहीं है. दैट विल बी शोन हियर इन द कॉलम, लास्ट कॉलम, which says that difference in table column number 9 of table number 9. सो लास्ट ईयर का इंपैक्ट यहां दिखेगा. अगर पिछले साल का कोई टैक्स पे किया है, पिछले साल के कारण कोई टैक्स कम किया है, सो दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग. राइट फ्रेंड्स, ये जो मैंने एस्ट्रिक लगाया है टेबल का टेबल, ये ऑटो पॉपुलेट होगा, बट अमेंडेबल है. यू कैन अमेंड इट. आपने टैक्स बढ़ाया है, आप इसको टेबल को चेंज करिए. जैसे आपने कहा कमर्शियल रेंट के ऊपर टैक्स पे करना है, get it added here. So you can amend it. But ये ऑटो पॉपुलेशन पता है कैसे होगा? चलो एक एग्जांपल बताती हूँ.
एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है 3B में नेगेटिव ड्यू टू क्रेडिट नोट्स, बिकॉज देर आर सर्टेन बिजनेसेस जहां रिटर्न्स जाती हैं, स्पेशली जो विंटर के हैं। सो विंटर से जब रिटर्न्स आती हैं तो CN का अमाउंट कभी कभी सेल से भी ज्यादा हो जाता है। राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सेल की 100, CN दिया 80 का, पेबल आया 20। 3B में क्या गया होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट 3B, 20 पे कर दिया हमने, ओके। अगले मंथ में क्या हुआ? CN आ गए 130 के, ओ सो 30 नेगेटिव बना। इट विल कैरी फॉरवर्ड योर नेगेटिव, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। नेक्स्ट मंथ में आपका पेबल आया 75, वो आपका -30 एडजस्ट करता है और आपको 45 पे करना है। नेक्स्ट मंथ में CN और ज्यादा आ गए, पेबल बना 120 नेगेटिव। अब आपका वो जो टेबल 9 में इंपोर्ट करेगा फिगर, वो पॉजिटिव मंथ्स की करेगा, नेगेटिव मंथ्स की नहीं करेगा। मीनिंग thereby it will import 20 and 45, 65 मंथली बेसिस नेगेटिव, जो CN की वजह से नेगेटिव हुए हैं उनको एडजस्ट नहीं करेगा। दिस 65 फिगर विल बी ब्रॉट इन योर टेबल 9 पेबल कॉलम फ्रॉम द 3B, राइट। नाउ फर्दरमोर, कुछ लोग कहते हैं अरे मेरे तो नेगेटिव क्रेडिट्स भी रिपोर्ट कर रहा है। अरे वो क्या है? इनपुट का नेगेटिव है, इनपुट का नेगेटिव मतलब, अरे मेरी आउटपुट लायबिलिटी थी 2000 रुपीज, माय आउटपुट लायबिलिटी वाज 2000, लेकिन मेरा एक जून 24 में ना रिवर्सल ज्यादा है ITC का, मोर देन ITC, सो 500 नेगेटिव हो गया। अब ये क्या करेगा? जब आपका पेबल कैलकुलेट करेगा तो ये 2000 तो लाएगा ही, प्लस जो ITC जिस मंथ में नेगेटिव हुआ होगा उसे भी जोड़कर पेबल में ऐड कर। सो अगर आपका CN की वजह से नेगेटिव है तो नेगेटिव को इग्नोर करेगा, पॉजिटिव वाली फिगर पेबल में उठाया होगा उसने। इफ योर ITC is going negative in any ways, in any month, it add backs to your output liability, right? Table 10, 11, 12, 13 almost same है। हाँ, 14 में भी वैसे ही पेबल और पेड का कॉलम इंसर्ट किया गया है, दिस डिफरेंस कॉलम, पेबल माइनस पेड। HSN summaries में sale summary is mandatory for the year. However, purchase summaries are not mandatory. अब आप HSN की डिटेल्स का भी एक टेबल डाउनलोड कर सकते हैं लाइक दिस, एंड आई थिंक सो HSN समरी इंपोर्ट इज अ बिग इशू, 0.01 का डिफरेंस एक्सेप्ट करता है, समटाइम्स यू कीप मैचिंग द सेम, राइट। ई-कॉमर्स में जो 3B में चेंजेस आए थे उसके रेलेवेंट चेंजेस इसमें हैं। Yes, GSTR 9 का late fees 9 और 9C you will be taking up there, but late fee पे एक circular issue हो चुका है 246. Sir, 9C also is now the part of annual return only, because अब तो certification है ही नहीं। So आपको जो late fee लगनी है, अगर आपकी 9 late है 1 month से और 9C late है 3 month से, मतलब आपने 9 भरी 31 जनवरी को, 9C भरी 31 मार्च को, तो आपको 4 मंथ्स का लेट फी नहीं लगेगा। 9 का लगेगा 1 मंथ का, एंड 9C का लगेगा 9 से, मतलब 2 मंथ्स का। डुप्लीकेशन ऑफ लेट फी नहीं होगा। सो द एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवन, नो डुप्लीकेशन ऑफ लेट फी। GSTR 9 के लिए लगेगा डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से डेट ऑफ फाइलिंग तक। 9C का लगेगा 9 की फाइलिंग से अगर वो लेट है तो, नो डुप्लीकेशन। फ्रेंड्स, इन दिस एग्जाम्पल अगर एक टैक्स पेयर IMS फॉलो करता है, जो कि 11024 से इंट्रोड्यूस हुआ, वो IMS फॉलो नहीं करता इन द सेम डीम्ड एक्सेप्टेंस है, तो आप देखिए कॉलम्स बदल जाते हैं। और अगर वो ग्रॉस मोड, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, 100 लेगा, 20 रिवर्स करेगा, 80 लेकर आएगा, तो कॉलम्स बदल जाते हैं। अगर वो नेट मोड फॉलो करता है तो कॉलम्स, मतलब क्या, नेट मोड इनकरेक्ट नॉट एज पर नोटिफिकेशन, व्हाट ही डज, ऊपर से ही 100 को काट के 80 कर देता है। नेट मोड फॉलो करता है तो कॉलम्स बदल जाते हैं।
आई एम नॉट मतलब डिस्कसिंग, बट मैं छोटा सा एक बस बता देती हूँ इसमें। अगर पर्सन IMS फॉलो करता है ना तो उसका रिक्लेम नहीं आता। क्यों? अरे वो साड़ी नहीं पहुंची मेरे तक, मैं तो उसका ITC पेंडिंग छोड़ दूंगी ना। जब मैं पेंडिंग छोड़ूंगी तो वो मेरे 3B में ऑटो पॉपुलेट ही नहीं होगा। जब वो मेरा ऑटो पॉपुलेट ही नहीं होगा, सो एज अ रिजल्ट मुझे उसको रिक्लेम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस एग्जांपल में मेरा मार्च 25 में आया जरूर बिल, बट मुझे अप्रैल 25 में साड़ी रिसीव हुई, राइट? तो मैं उसको लूंगी ही पहली बार अप्रैल 25 में। अब अगर लिया ही पहली बार अप्रैल 25 में तो रिक्लेम में तो आएगा नहीं, ऊपर के सारे कॉलम जीरो हैं। क्या करूं? 8C में दिखाऊंगी सर पहली बार लिया ही अगले साल है, 8C में दिखाऊंगी और टेबल 13 में दिखाऊंगी। अब जो पर्सन डीम्ड एक्सेप्टेंस कर लेता है IMS की, उसको तो भाई ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा तो वो इसको रिक्लेम में वो इसको जब उसका 50,000 ऑटो पॉपुलेट हो गया तो देन ही, क्योंकि ये सेम ईयर का एग्जांपल है, सो देन उसको ही हैज टू शो नो रिक्लेम नेक्स्ट ईयर है, बट बिकॉज उसका ऑटो पॉपुलेट हो गया तो पहली बार इस 6B में दिखाएगा और 50,000 रिवर्सल में दिखाएगा। अगली बार रिक्लेम करेगा तो टेबल नंबर 13 में जाएगा, 8C में नहीं जाएगा। देखिए सेम थिंग IMS वाले के लिए सिर्फ फिगर टेबल नंबर 8C और 13 में आई। जो IMS का डीम्ड एक्सेप्टेंस करते हैं, क्योंकि उनका ऑटो पॉपुलेट हो चुका होता है, तो वो पहले आप लेते हैं, रिवर्स करते हैं, लेते हैं हम, रिवर्स करते हैं एंड देन अगले साल लेते हैं, तो वो टेबल नंबर 6B, टेबल नंबर 7J एंड टेबल नंबर 13 में आएगा, 8C में नहीं आएगा। जो लोग ग्रॉस बेसिस पे चलते हैं, लिया, रिवर्स किया एंड देन शो, उनके लिए ये कॉलम्स इस तरह से भरे जाएंगे, रिवर्सल रिवर्सल में जाएगा एंड अदरवाइज। जिन लोगों ने नेट मॉड फॉलो किया उन लोगों का तो ऑटो पॉपुलेशन ही 550 होना है। सी 6 लाख माइनस 50,000 नहीं होना, वो जब उनके लिए 8C भरा जाएगा जब वो अगले साल लेंगे। सो यू नीड टू चेक आपने अपनी 3Bs कैसे भरी हुई है। In this PPT, I have considered all the gross and the net mode and IMS. कुछ पॉइंटर्स और बताती हूँ, ये सारे वही केसेस हैं अंकित कुमार अग्रवाल, शानमुगा हार्डवेयर, which let us know the importance of GSTR 9 correct filing while adjudications. Moreover, in this PPT, I have given the columns that are mandatory and that are optional या वो auto mode में है. So a quick go through you can make through it. Furthermore, some pointers पहले सारी रिटर्न्स भरी हो तो ही वो ऑटो पॉपुलेट करेगा। इवन अगर आपके नंबर सरेंडर हुए हैं और लिमिट से एक्सीडेड है, देन इन दैट केस आपको GSTR 9 भरनी है। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, देन इन दैट केस आपको एक भी ब्रांच, अगर आपकी ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होती है, कर्नाटका, no, we take it to be Kolkata, Punjab and Mumbai. Let's suppose Kolkata has 4.5 turnover, Punjab has 0 turnover, or Mumbai has 1 turnover, 1 crore. Then you are supposed to file 39 and 39C, even for Punjab, which is under 0. Right? So for every branch and even composition के लिए फॉर्म 9A है, बट 2 करोड़ से ऊपर तो मैंडेटरी है, 2 करोड़ से नीचे तो फाइल ही नहीं करना है, तो वाई 9A? अगर आपने स्विच ओवर किए हैं और आपकी टर्नओवर एक्सीडेड है कॉम्पोजिशन टू नॉर्मल, सो प्लीज फाइल 9A एज वेल एज 9. आई ऑलवेज कंसिडर कि मुझे एक बंच चाहिए जिसमें मेरी कुछ चीजें होनी चाहिए और मैं उसको चेक कर सकूं, and I'm showing you my Excel sheet, how I take a bird's eye view. After this, I will just move to 2 queries which are there in the chat box. Friends, this is the Excel. ये कोई rocket science नहीं है. जिस तरह से I can understand the things, I have made it. Formulas are embedded in this sheet.
मैंने एक साइड पे आउटपुट रखा है, एक साइड पर इनपुट रखा है। आउटपुट के केस में 3 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 3B, 1, I hope so it is visible, sir. Yes, ma'am. 1 and actual liability as per 2(6). देखिए मैंने 3 कलर्स दिए हैं, राइट? सो अब नीचे उनके डिफरेंसेस निकलते हैं, उसमें से आपने कितने मार्च के बाद करेक्ट कर दिए और कितने अभी भी एडजस्ट होने, जिनका या तो पेबल बनेगा या रिफंड निकलेगा। Likewise, I have made it for ITC also. जो लोग पुरानी शीट यूज कर रहे हैं, let me tell you, the sheet for this year has been revised, और इसमें वो सारे कॉलम 6A1, 6H का इम्पैक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट हियर इज 6A1 में ग्रॉस फिगर जाएगी, यानी टेबल नंबर 13 जाएगा ओनली। क्या कहना चाहती हूँ? अरे 6A1 का मतलब है पिछले साल के इम्पैक्ट माइनस करने। लेट्स सपोज हमने पिछले साल का आईटीसी लिया है 100 और रिवर्स किया है 20, तो इसमें 80 नहीं डालना है, 80 नहीं डालना है। अगर आप करेक्टली रिटर्न फाइल करते हो ग्रॉस नोट पे तो 100 डालना है, टेबल नंबर 13, क्योंकि टेबल 6 रिवर्सल्स को कंसिडर नहीं करता है। तो 6A1 में भी सिर्फ टेबल नंबर 13 आए। अगर आप नेट मोड पे चलते हो तो फिर तो आपने नेट करके 80 लिया होगा, फिर आपको वो दिखाना पड़ेगा। इन केसेस में मैं 8A, बुक्स, रिवर्सल, इसमें जब नीचे डिफरेंसेस निकलेंगे ना, रिवर्सल की वजह से डिफरेंस है, इंटरहेड की वजह से डिफरेंस है, एग्जेम्प्ट सेल की वजह से डिफरेंस है, 37A की वजह से डिफरेंस है, वो सारे डिफरेंसेस मेरे सामने एक ही शीट पर आ जाते हैं। आरसीएम की वजह से डिफरेंस है, सो आई गेट अ बर्ड आई व्यू कि अच्छा एक हेड का दूसरे हेड से शायद एडजस्टमेंट हुआ है, बिकॉज इसमें एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल सारे बाइफिकेशंस है, एंड आई ऑलवेज डू द बैलेंस मैचिंग बिगिनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इनमें जो ड्यूरिंग द ईयर का डिफरेंस होगा वही मेरी इस शीट में आउटपुट और इनपुट का नेट करके डिफरेंस निकलना चाहिए। सो it gives you a little hand on that how you can discuss that, right? Sir, I am just letting the viewers know that the PPT में लास्ट ईयर तक भी जो हम आउटपुट के केस लॉस डिस्कस करते थे, कौन से पॉइंटर्स चेक करने चाहिए, क्या लेट फीस कैसे कैलकुलेट होंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगी, और ई कॉमर्स की टर्नओवर ऐड होगी नहीं होगी, ऑल दोस पॉइंटर्स आर द पार्ट ऑफ पीपीटी अलोंग विद आपका की टेबल 8, ये जो आउटपुट का टेबल है उसमें स्पिल ओवर इफेक्ट्स, क्योंकि वो लास्ट ईयर के सेम रहे हैं, उसकी पूरी एग्जांपल्स इसमें एम्बेडेड है। सी this complete, but I have taken the changes, so I am not discussing those changes। जो मतलब जो ओल्ड पीपीटी है, जो पुरानी स्लाइड्स हैं, जो टर्नओवर के इफेक्ट्स हैं, that is already the part of PPT which you can refer। now I move on to the section, Vaibhav ji, don't worry, PPT, Excel, everything will be shared। now I come to Swati ji's question for the year 24-25 while doing amendment of March 25 and October 25। okay, मतलब आपने पोस्ट मार्च अमेंडमेंट किया है। I have taken excess B2B credit। now how to give its impact in 9 and 9C। आप इसका मतलब स्वाति जी आप अपना रिवर्सल करना चाहती हैं, मतलब आपको वो ज्यादा आईटीसी पे बैक करना है थ्रू योर जीएसटीआर 9। वैसे तो टेबल 7 रिवर्सल में वही रिवर्सल्स आते हैं जो 3B में गए हों, बट अगर आप एक्सेस रिवर्सल करना चाहती हैं, सो इन माय केसेस मैंने उसको टेबल 7 में बढ़ा दिया है और उतने का मैंने DRC 03 पे किया है। This is the mechanism that I have followed without disturbing my output. Without disturbing my output. All right. Deepak ji's question. Will figures reported in table 13 of GSTR 9 be different from 12C of 9C?
9C वैसे तो सर विल बी टेकिंग टेबल 13 में जो फिगर आएगी इस साल के इम्पैक्ट जो अगले साल जाएंगे दैट शुड मैच विद योर टेबल 12C. अगर कुछ अगले साल रिहर्सल्स किए हैं, आई नीड टू चेक. आई थिंक सो यश दादाजी विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन. मुझे 9C का वो कॉलम आई एम नॉट रिकॉलिंग राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल चेतन गांधी जी, फॉर्म 9 is filled from GSTR 1 filed and 3B and books is not matching. At the beginning, Chetan ji, I answered this question. You can amend the columns. आपको अपनी actual liabilities दिखानी है, आप auto populated figures को change कर सकते हैं, right? Whether interest, अच्छा, interest वाली query I am taking. Bhavukji, that depends upon the organizers. I request organizers to please look into the query of Bhavukji. Meanwhile, Deveshji, I just take your query. Interest. Friends, interest बहुत तरह का होता है. First, interest from debtors. Deveshji, that is taxable. That is a taxable interest, right? Now, if I say कि वो taxable है, तो वो very much part of turnover है. Second, interest from unsecured loan. That is an exempt income. Exempt तो है, but exempt is also the part of turnover, aggregate turnover. So उसके बाद tax पे नहीं होता, but वो मेरे 2 clause 6 की limit को impact करते हैं exempt supply. Third interest is interest of what you say, the interest due to FDRs. अगर sole proprietor का number है, the FDRs made, the interest coming from those FDR is not in the course or furtherance of business. तो मैं उसको supply ही consider नहीं करूंगी. As a result, वो मेरी limit को भी, turnover को भी impact नहीं करेगा जब वो supply नहीं है. लेकिन अगर आपने कोई ऐसी FDR है जो business के लिए दी हुई है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जरूरी है, सिक्योरिटी की फॉर्म में दी हुई है, उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट जो है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो दैट अगेन विल रिमेन इन एग्जेम्प्ट सप्लाई बट विल बी अ सप्लाई, हेंस विल बी काउंटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर. इंटरेस्ट की 2 एक्सेप्शंस हमारे लॉ में मिलती हैं जहां एग्जेम्प्ट इनकम होने से वो डिस्टॉर्ट नहीं करता. दैट इज 23, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स. उसमें अगर इंटरेस्ट इनकम होगी उसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स माना जाएगा. सेकेंड, कॉम्पोजिशन के केस में जो इंटरेस्ट इनकम आएगी, कॉम्पोजिशन के केस में जो इंटरेस्ट इनकम आएगी, that will be not considered कि वो services receive कर रहा है. So ultimately interest को मैंने 3 parts में बात किया: taxable, not a supply, और a exempt supply. So तीनों का bifurcation I have given, right? Sir 5O column जो है, आपने 9C की बात की है. So 9C yes sir is taking. अच्छा, एक जो क्वेरी थी दैट वाज जो आपने कहा था कि क्या वो टेबल उससे मैच करेगा, और एक ही क्वेरी सेम उसमें 12B पे भी है. सो आई एम टेकिंग यू टू द सेम स्लाइड, जस्ट गिव मी अ व्हाइल. Subham, something Subham, it just, सॉरी yes, ma'am. सॉरी सर. एक क्वेरी है 12 शुभम वैष्णव की. सर शुभम वैष्णव जी की जो क्वेरी, आई एम मूविंग फॉर द सेम. आई एम जस्ट ओपनिंग द स्लाइड राइट इन फ्रंट, और वही मैं लेने जा रही हूँ. लेट मी शो यू द स्लाइड जो हमने दिस इज द लिंकेज, राइट. अब हमने कहा था ITC बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट. एक अभी क्वेरी आई थी 12C को लेकर, ITC booked in current financial year to be claimed in, this will be table 13 of GSTR 9. Somebody who asked the question. Next, Shubham ji, आपने जो query पूछी थी, just to avoid difference in table number 12 of 9C, is it correct to disclose the figure in 12B?
सर अगर आप 12B में दिखाएंगे ना तो डिफरेंस जो है वो आएगा। क्यों, मैं बता देती हूँ। ये जो 9 का कॉलम 7J होगा ना, ये वाला, इसमें अब लास्ट ईयर के इम्पैक्ट्स नहीं है टेबल 7 में। सो जब आप यहाँ 12B में डालेंगे तो वो यहाँ डिफरेंस रिजल्ट करेगा, राइट? So let me read the query. Is it correct to not disclose? Yes, this is what I'm saying. Not disclose the figure in 12B. I think instructions are different, then we should follow instruction for both 9 and 9C. If we are following instruction for 9, then 12B. Is it not? Again, you are right, शुभम जी। मैंने ये किया है, मैं यहाँ डिफरेंस ओरिजिनेट नहीं होने दे रही, ऑल्दो उसकी वजह से 14 में डिफरेंस आता है। मैंने यहाँ पे डिप नहीं डाला, जिसकी वजह से यहाँ डिफरेंस नहीं आया। मैंने नीचे नोट फिर भी दे दिया, क्योंकि 6A1 में वो वाइप आउट हो गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाला। इफ यू पुट हियर एज पर द इंस्ट्रक्शन, लेट द डिफरेंस कम हियर, आप तब भी नीचे नोट दे सकते हैं। सो 12 और 14 दोनों में से एक में डिफरेंस पॉपअप होता है। एंड आई रिक्वेस्ट इफ यस सर इज देयर, सो इफ ही वांट्स टू ऐड समथिंग सो ही कैन। मोस्ट वेलकम सर। So this is my opinion. I am not putting in 12B sometimes. I am not letting the difference come. In some cases, I feel कि okay, let it come here. 14 में difference नहीं चाहिए. So I give a note there and put the figure in 12B. Sir, next query is From if ITC of 1 second. Once again, Chetan ji, madam, in table 12 of 9C, there is differences coming. What is the reason? I'm not able to understand. Chetan ji, you send the screenshot to me. We can discuss that. जो भी आपको उसमें आपकी particular query आ रही है, that we will see. Right? so DRC 03 filed due to loss of stock by fire during the financial year 24-25. Okay, Pankaj ji, to the extent I could understand your query, आपका loss of stock by fire हुआ है, क्योंकि आपका loss of stock by fire होगा तो आपने ITC रिवर्स किया होगा, और आपका कहने का मतलब है कि वो ITC जो रिवर्स किया है वो मैंने 3B में नहीं किया, और मैंने वो DRC 03 के थ्रू रिपोर्ट किया है। Although table 7 instruction says, और I am assuming कि 9C आप नहीं भर रहे हैं, ऑल्दो वो आपने टेबल नंबर आपने 3B में वो नहीं दिखाया है। टेबल 7 3B के रिवर्सल्स की बात करता है, बट स्टिल आई वुड शो इट इन टेबल 7। उस अमाउंट के लिए मेरा DRC 03 सेपरेटली होगा। सो आई एम फॉलोइंग दिस पॉइंट, जो मैंने पहले भी किसी और पॉइंट पे एक्सप्लेन किया था। वैभव जी सेड फॉर मल्टीपल स्टेट वाइज GST or 9C, although the query belongs to sir, but Vaibhav ji, I put only the figure of that branch only. I do not remove it in 5O. I fill it in the only the state figure in the first column rather than removing it in 5O. And this is what the instructions say. It's yes, all. I think so, sir. Queries are covered. yes, from box. yes, most of the queries has covered, ma'am, in the chat box actually. So now no queries left here. One तो sir, भावुक जी, sorry, I'm just interrupting because उन्होंने काउंटर किया है। भावुक जी, मैं इनपुट की वजह से आउटपुट को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि टेबल 9 में आप उसको ऐड करके DRC का दें तो यू कैन डू सो, राइट? बट आई शो द इनपुट रिवर्सल। ओवर टू यू सर। यस मैम। सो एक्चुअली मैम, इसमें ये जो 12B का है पोजीशन, एक्चुअली इसमें अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द 9C। उन्होंने 6A1 तो कर दिया, लेकिन 12B को छोड़ दिया, भूल गए उन लोग। तो उसको वो दैट इज बिकॉज व्हाई इन द FAQ इटसेल्फ दे आर सेइंग आप डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का रीजन दो, बट आप उसको करना भूल चुके हैं। तो आई थिंक दिस चेंजेस शुड बी मेड एक्चुअली मैम। सो आई रियली थैंक्स टू द आंचल मैम, उन्होंने टेबुलेशन फॉर्मेट में FAQ को ऐसे कन्वर्ट किया कि उसको कोई भी एक लेमैन भी पढ़ेगा ना तो दे कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस इन द ऑल द टेबल्स एंड ऑल द एनेक्सर्स, स्पेशली ITC पार्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस है। 6A1 का लाया उन्होंने,
सी कोटेड जो प्रॉब्लम हो रही थी लिटिगेशन में हम लोग जो फेस कर रहे थे, आफ्टर पुटिंग 6A1 इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस, स्पेशली एक्सप्लेन टू द ऑफिसर्स एक्चुअली सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। और सबसे वाला बर्निंग इशू था 8A। नाउ द 8A ऑल्सो टू द सम एक्सटेंट वी हैव रिलीफ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एज ए टैक्स पेयर्स कि चलो 8A को अब ठीक कर दिया। लेकिन मैडम हैज कोटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 8A ऑनलाइन और 8A ऑफलाइन में डिफरेंस है। होता क्या है, वी रिकंसाइल फ्रॉम द एक्सेल कॉपी, बट 8A ऑनलाइन में फिगर अलग है। फर्स्ट 8A ऑनलाइन को और 8A एक्सेल को टैली कर लीजिए, देन यू मेक द रिकंसिलिएशन, इट विल बी हेल्पफुल टू यू क्योंकि 8D में जो डिफरेंस आ रहा है वहां पर और यहाँ 8A 2B का रिकंसिलिएशन दोनों टैली करेगा। करेक्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बाय द मैम एंड ब्यूटीफुल डेलिब्रेशंस एंड आस्क ऑल द क्वेरीज। और मैंने देखा बहुत सारी पीपीटी में तो क्वेरी डीम्ड सॉल्व हो रही, तो दैट कल जैसे डीम्ड एक्सेप्टेंस होता है ना आईएमएस में, उसी तरह डीम्ड रिजॉल्व ऑफ द क्वेरीज। So once again, I thank you, ma'am, on the behalf of the ACA for wonderful deliberations. हम लोग आपको याद करते रहेंगे. Thank you for giving the time. Thank you very much for the nice sessions. Thank you, ma'am.